أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا۔ بے شک یہ نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کو آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کفر پر قائم رہنے کے باوجود تم سے فرعون کی طرح دنیا میں ہی مواخذہ نہ ہوا تو تم قیامت کے اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو انتہائی ہولناک ہوگا، اور وہ اپنی شدت اور دہشت سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور آسمان اپنی عظمت و قوت کے باوجود اس دن کی شدت کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالی نے قیامت قائم ہونے کا جو وعدہ دیا ہے
वो होकर रहना है। इन्ना तज़किरा, बेशक ये नसीहत है, यानी बेशक दुनिया व आखिरत के अज़ाब से डराने वाली ये आयात मखलूक के लिए नसीहत है। तो अब जो चाहे ईमान और इताअत इख्तियार करके अपने रब ताला की तरफ रास्ता इख्तियार करे। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन अलिम अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरून यदरिबूना फिल अर्द यबतगूना मिन फ़ज़लिल्लाह व आखरून युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फक़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह व खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम क़ियाम करते हो, कभी 2/3 रात के करीब, कभी आधी रात, कभी तिहाई और एक जमात तुम्हारे साथ वाली, और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा फरमाता है। उसे मालूम है कि ऐ मुसलमानों, तुमसे रात का शुमार ना हो सकेगा, तो उसने अपनी मोहर से तुम पर रुजू फरमाई, अब कुरान में से जितना तुम पर आसान हो इतना पढ़ो। उसे मालूम है कि करीब कुछ तुम में बीमार होंगे और कुछ जमीन में सफर करेंगे, अल्लाह का फजल तलाश करने, और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो जितना कुरान में असर हो पढ़ो, और नमाज कायम रखो, और ज़कात दो, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथियों में से एक जमात कभी 2/3 रात के करीब क़ियाम करती है, और कभी आधी रात, और कभी 1/3 रात, और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा फरमाता है। उसे मालूम है कि मुसलमानों तुम सारी रात क़ियाम नहीं कर सकोगे, तो उसने अपनी मेहरबानी से तुम पर रुजू फरमाया। अब कुरान में से जितना आसान हो इतना पढ़ो। उसे मालूम है अनकरीब तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे, और कुछ जमीन में अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए सफर करेंगे, और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो जितना कुरान आसान हो पढ़ो, और नमाज कायम रखो, और ज़कात दो, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और अपने लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इन्ना रब्बका यअलम, बेशक तुम्हारा रब जानता है। इस सूरत की इब्तिदाई आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर तहज्जुद की फर्जियत का बयान हुआ, और इस आयत में उम्मत से तहज्जुद की फर्जियत मंसूख होने का बयान है। चुनांचे इस आयत का खुलासा यह है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि आप और आपके सहाबा में से एक जमात आपकी पैरवी करते हुए कभी 2/3 रात के करीब क़ियाम करती है, और कभी आधी रात, और कभी 1/3 रात क़ियाम में गुजारती है, और अल्लाह ताला रात और दिन के अज्र
अल्लाह ताला रात और दिन के अज्जा और उनकी घड़ियों की मिकदार जानता है, लिहाजा वो रात की उस मिकदार को भी जानता है जिसमें तुम क़याम करते हो, और उसे वो मिकदार भी मालूम है जिसमें तुम सोते हो, और उसे ये भी मालूम है कि ऐ मुसलमानों, तुम रात का शुमार नहीं कर सकोगे और उसके औकात की तायीन न कर सकोगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से तुम पर रुजू फरमाया और तुमसे मशक्कत दूर कर दी, लिहाजा अब नमाज के दौरान कुरान में से जितना तुम पर आसान हो इतना पढ़ो, और रात का लंबा क़याम तुम्हें माफ है। और तुम्हें ये तखफीफ देने की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि करीब तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ लोग तिजारत के जरिए जमीन में अल्लाह ताला का फजल तलाश करने या इल्म हासिल करने के लिए सफर करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह ताला तिराना कुफ्फार से लड़ते होंगे। इस वजह से उन सब पर रात का क़याम दुश्वार होगा। तो तुम पर जितना कुरान आसान हो इतना पढ़ो, और फर्ज नमाज कायम रखो, और ज़कात तुम पर वाजिब हो उसे अदा करो, और नफली सदकात के जरिए अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो, और अपने लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे। और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, अब कुरान में से जितना आसान हो इतना पढ़ो। यहाँ 3 बातें याद रखें। एक, इस आयत से नमाज में मुतलकन क़िराअत की फर्जियत साबित होती है हुई। 2, फर्ज क़िराअत का सबसे कम दर्जा एक बड़ी आयत या 3 ऐसी छोटी आयतें हैं जो बड़ी आयत के बराबर हों। 3, इस आयत से रात में क़ियाम की मिक़दार मनसूख हुई। फिर एक कौल के मुताबिक 5 नमाजों की फर्जियत से उम्मत के हक में तहज्जुद का असल वजूब भी मनसूख हो गया। वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इस कर्ज से मुराद ज़कात के अलावा राह खुदा में खर्च करना है, जैसे रिश्तेदारों से सिला रहमी करने में और मेहमान नवाजी करने में खर्च करना। बाज मुफस्सिरीन ने कहा इससे वो तमाम सदकात मुराद हैं जिन्हें अच्छी तरह हलाल माल से और खुश दिली के साथ राह खुदा में खर्च किया जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज कारी और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।